Hello students, I Neha Dhaliwal from today will be teaching y'all information technology for standard 12th. Before starting our first unit, I will give you a short introduction about the syllabus of information technology for class 12th. There are total 6 chapters included in a theory subject, whereas there are 4 different practicals. Based on it, we will take total 12 practicals. Okay, so now without wasting our time, we will start with the first unit, that is unit 1, advanced web designing. Now by the word itself we can understand what is the meaning of advanced web designing. Advanced web designing is nothing but creation of website or the web pages. Now in the last year we have seen how to design the web page, that is which is the language used for designing the web page. We are familiar with writing the HTML program last year. So before starting the web designing, we will go through quickly the basic structure of HTML. So this is the basic structure of HTML which we have studied in the previous year. Every HTML program starts with an HTML tag and ends with an HTML tag. So HTML is the tag used for writing any HTML program. Okay. The second tag is the head tag. Head tag is used to assign the title to your browser and to identify the browser that you are writing a title. So every time to give the information to your browser, we use the head tag. Inside head tag, we have the title tag. The title tag is the optional tag. You can assign the heading to your title or you cannot. It is optional tag. एक बार अगर आपने टाइटल दे दिया तो टाइटल टैग आपको क्लोज करना पड़ता है. तो टाइटल टैग आप कैसे क्लोज करते हो? बाय यूजिंग \टाइटल. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टाइटल क्या दिया हमारे प्रोग्राम को, ABC. अभी मेरा टाइटल देना कंप्लीट हुआ है, तो जो टाइटल टैग यहाँ पे ओपन है वो टाइटल टैग मैंने यहाँ पे क्लोज किया है बाय यूजिंग \टाइटल. एक बार मेरा टाइटल पूरा कंप्लीट हो गया है तो जो हेड टैग ओपन है वो भी टैग मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लोज किया है बाय यूजिंग \head. नेक्स्ट इज द बॉडी टैग. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी टैग? बॉडी टैग में हम क्या राइट कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, टेबल क्रिएशन रहेगा, इमेजेस रहेगी, लिंक्स रहेगा. ये सब हम किस में देते हैं? हमारे बॉडी टैग में. ओके. आफ्टर राइटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, अगर आपका डिटेल्स खत्म हुआ है तो आपको आपका बॉडी टैग क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है. तो बॉडी टैग आप कैसे क्लोज करोगे? बाय यूजिंग ऑपरेटर बॉडी. लास्टली HTML प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है तो HTML टैग आप क्लोज करोगे बाय यूजिंग /HTML. This is the method for writing any basic HTML program. Once we have written a program, we will save that program by extension .html. .html ये एक्सटेंशन होता है हमें फाइल सेव करने के लिए. जो भी फाइल हम सेव करते हैं वो फाइल हम एग्जीक्यूट कहाँ पे करते हैं? हमारे ब्राउजर पे. तो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डिफरेंट ब्राउजर यूज करने पड़ते हैं. यू कैन यूज एनी वन ऑफ द ब्राउजर फ्रॉम Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple, etc. After that, last year we have also studied different controls for creating the page of form. For example, how to create the text box, how to create radio button, check box, submit button, reset button, and how to select a particular area for writing a program. Okay, ये सब चीजें हमने last year देखी. Now this year we are going to study how to design exact web pages and which will be the different features include while writing that web page. For example, web design करते समय हम जो attributes use करते हैं, कौन से टाइप के attribute है, each attribute का meaning क्या है, वो हम क्या करने वाले ये ईयर में सीखने वाले. तो फर्स्ट attribute that we are going to study is the advanced input element. Input is the first tag
which we will be studying for creating the web design. Okay, so here input tag has different attribute with different value. Input tag contains different attribute also. According to its attribute, the value can be different. You can have same attribute with different value also. So here is some of the input type. Here input is my tag, whereas type is my attribute, and this color is my value. Remember, every time the value is given in double inverted commas. Okay, now first we will see input type is equal to color. Now input type is equal to color. This tag is used when we want to define a particular color for a form. Whatever the form you are writing, पर्टिकुलर कलर अगर आपको असाइन करना होगा, पर्टिकुलर कलर डिफाइन करना होगा वो एट्रीब्यूट को, तो तब हम क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर. सेकेंड इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर. इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर कब यूज करेंगे हम, जब हमें हमारे फील्ड में नंबर एंटर करना होगा. कोई भी नंबर अगर हमें हमारे फील्ड में एंटर करना होगा तो वो टाइम हम क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर. It is used to define the entering of number to a particular field. Third है input type is equal to URL. Now what is URL? URL is nothing but it is Uniform Resource Locator. जो रिसोर्स आपको लोकेट करना होगा, पर्टिकुलर रिसोर्स आपके प्रोग्राम में, तो वो आप कैसे मेंशन कर सकते हो, बाय राइटिंग इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL. इसमें आप अपने रिसोर्स, जो भी रिसोर्स राइट करने वाले हैं, उसका इंफॉर्मेशन वहां पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो. नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज. इफ आपको पर्टिकुलर बटन को इमेज असाइन करनी होगी तो आप क्या यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज. अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज राइट करते हो तो आपका जो भी बटन रहेगा उसको आप क्या कर सकते हो, इमेज डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट. ना इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, ये क्या रहता है, जब हम हमारा कौन सा भी फॉर्म डिजाइन करते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है, डेट ऑफ एडमिशन रहती है, तो वो राइट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा टैग यूज करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट. इससे क्या होगा, जो भी डेट हमें राइट करनी है वो कौन से फॉर्म में आएगा, YYMMDD, मतलब ईयर, मंथ एंड डे. इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमारी डेट एंटर कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टैग जो रहता है दैट इज इनपुट टैग इज इक्वल टू ईमेल. जब आपको आपके फॉर्म में ईमेल एड्रेस डिफाइन करना होगा पर्टिकुलर फॉर्म डिजाइन करते वक्त, वो टाइप आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल. उससे क्या होगा, ईमेल का एड्रेस बॉक्स आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट टैग है इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ. इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ, ये कब यूज करोगे, जब आपको डेट डिफाइन नहीं करनी होगी, सिर्फ कौन से मंथ में और कौन से ईयर में हमने डिफाइन किया है वो अगर राइट करना होगा तो उस टाइप आप कौन सा यूज करोगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ. नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज. अभी इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज कब यूज किया जाता है, जब हमें स्पेसिफिक अलॉटमेंट ऑफ वैल्यूज देना है. जैसे कि मुझे 51 to 100 में कितने मार्क्स गिरे वो बच्चों चाहिए, परसेंटेज फ्रॉम 51 to 100, तो वो एक मेरी पर्टिकुलर रेंज है. अगर मुझे मेरे फॉर्म डिजाइन करते वक्त ऐसे कहा रेंज मेंशन करनी होगी तो उस टाइप में कौन सा यूज करूंगी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज. और अगर आपने रेंज की वैल्यू मेंशन नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू ली जाती है वो कौन सी रहती है, 0 to 100. 0 to 100 इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर योर रेंज. नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल. अभी इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेट ली जाती है, पर डेट कैसे रहती है, जिसमें आपका ईयर, मंथ, डेट एज वेल एज कौन से टाइम पे आपने राइट की है वो चाहिए होगा, तो वो टाइप आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल. वो कौन से फॉर्म में रहेगा, YYMMDD एंड लास्ट में उसके आगे क्या आएगा, टाइम. नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम.
इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ टाइम एंटर करना है पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए फॉर्म में, तो वो टाइप आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक। इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक कब हम डिफाइन करेंगे, जब हमारे फॉर्म में हमें पर्टिकुलर वीक एंड द ईयर मेंशन करना होगा, कौन से ईयर में कौन से वीक में हमें वो इवेंट किया है वो मेंशन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च मोस्टली हम कब डिफाइन करेंगे, जब हमें गूगल से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होगी। While finding any information or any type of string from the Google, we will define input type is equal to search in a form. Once we define input type is equal to search, we can define a field for finding or for searching any string from the Google. Okay. Next is input type is equal to file. Input type is equal to file. इससे क्या होगा, आपको एक बटन मिलेगा ब्राउजिंग के लिए जहां पे तुम तुम्हारी फाइल्स क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके फॉर्म में फाइल कहाँ से तो भी अपलोड करनी होगी या फिर एक आधी पर्टिकुलर इमेज आपको अपलोड करनी होगी, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस एट्रीब्यूट दैट इज टाइप इज इक्वल टू फाइल। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल। दिस इज यूज्ड विथ you want to define a field in your form for telephone number। जैसे कोई भी फॉर्म डिजाइन होगा, फॉर्म में कंपलसरी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर रहता है, तो उस टाइप हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्म डिजाइनिंग करते वक्त, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल। इससे क्या होगा कि आप एक फील्ड डिफाइन करोगे जिसमें आपका मोबाइल नंबर आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। So these are some advanced input element tags which are used for writing the program। इसका हम एक शॉर्ट एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको इन डिटेल समझ आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कौन से एलिमेंट्स का क्या यूज है। सो कलर लेना होगा तो कलर एलिमेंट लो, इफ डेट राइट करनी है तो डेट का एट्रीब्यूट लो, लाइक डेट विल बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म YYMMDD। अगर ईमेल एड्रेस राइट करना होगा तो उसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल लो। सिर्फ एट्रीब्यूट याद रखना और उसकी वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको सिर्फ रेंज डिफाइन करनी होगी पर्टिकुलर रेंज में, तो उसके लिए रेंज यूज करो। अगर आपको फाइल अपलोड करनी है, आपके फॉर्म डिजाइन करते वक्त आपको चाहिए होगा एक फील्ड ऐसी जिसमें आपको आपकी फाइल अपलोड करनी होगी, तो उस टाइप आप अपना इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल लो। ओके, सो दिस आर सम एडवांस टाइप। नाउ वी विल सी सम इनपुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर एट्रीब्यूट। जैसे हमने पिछले इसमें एट्रीब्यूट कौन सा सीखा है, टाइप। दिस इज द एट्रीब्यूट, इनपुट इज माय टैग, type is my attribute, and month, range, these are all my values. So one attribute we have seen in the previous slide, that was type attribute. So which are the restrictions used on that attribute, we will see. First attribute is disabled. You can use for your tag multiple different attributes. A single tag can contain multiple different attributes. First attribute is disabled. This attribute is used when your input field should be displayed. When your input field should be disabled. When, if in particular case your file should be disabled, that field you can make disable by using attribute as disabled. Next is max. This is used when we have to give the maximum value to your input field. फॉर्म में आपकी जो इनपुट की फील्ड है उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी असाइन करनी है, उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, मैक्स एट्रीब्यूट। आप कैसे राइट करोगे अभी ये, सपोज इनपुट टाइप इज इक्वल टू नेम, आपने क्या लिया है, नेम के लिए लिया है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम राइट करना है मतलब वो क्या रहता है, टेक्स्ट रहता है, कैरेक्टर्स रहता है, इसलिए मैंने कौन सा लिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब वहां पे मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स असाइन करना है, इसलिए मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट उसके आगे कौन सा लिखूंगी, मैक्स। मैक्स इज इक्वल टू 50।
तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट फील्ड विल बी 50 कैरेक्टर्स तक आप क्या कर सकते हो, उसको नेम असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज मीन। मीन इज यूज्ड टू गिव अ मिनिमम वैल्यू टू योर इनपुट फील्ड। मिनिमम वैल्यू अगर आपको देनी होगी आपके इनपुट फील्ड को कि मिनिमम मुझे कितना चाहिए, एट दैट टाइम यू विल यूज द एट्रीब्यूट मीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैटर्न। पैटर्न किसके लिए यूज किया जाता है, जो भी इनपुट वैल्यू हम देते हैं वो इनपुट वैल्यू को अगर हमें चेक करना होगा तो एट दैट टाइम व्हाट वी विल यूज पैटर्न। ओके, रीड ओनली। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज रीड ओनली। कभी क्या होता है, अगर हमने देखा होगा गूगल का जो भी हम पेज ओपन करते हैं, कुछ पेजेस ऐसे रहते हैं कि उसमें से हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल पे अपनी कॉलेज की साइट ओपन करते हैं तो कॉलेज के साइट के जो भी डिटेल्स रहेंगे वो सिर्फ हमें रीडिंग पर्पस के लिए अवेलेबल होते हैं। वो हम क्या कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हम एडिट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। द डॉक्यूमेंट विच इज अवेलेबल ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, वो एट्रीब्यूट, वो फील्ड के लिए हम क्या राइट करते हैं, रीड ओनली एट्रीब्यूट। रीड ओनली एट्रीब्यूट से क्या होता है, पर्टिकुलर फाइल में हम डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं पर उसमें डेटा हम राइट नहीं कर सकते। मतलब देयर इज नो एडिटेबल वैल्यूज इंसर्टेड इन द रीड ओनली एट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर इज द टेम्पररी लेबल विच वी आर गिविंग फॉर आवर टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड को जो टेम्पररी वैल्यू आप असाइन करते हो विदाउट यूजिंग आर लेबल टैग, जो भी वैल्यू हम टेम्पररी असाइन करते हैं वो किस में लिखते हैं हम, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जनरली टेम्पररी वैल्यूज राइट करने के लिए हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कब यूज किया जाता है, जब कंपल्सरी आपको वो वैल्यू फिल करनी होगी। जैसे कि हम अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कहाँ पे कंपल्सरी एट्रीब्यूट, हमें कंपल्सरी फील्ड अगर हमें फिलअप करनी होगी तो वहां पे हमें स्टार एट्रीब्यूट दिया जाता है। स्टार मार्क मतलब क्या, इट इज कंपल्सरी। सो रिक्वायर्ड फील्ड अगर हमें कंपल्सरी फिलअप करना है तो वो फील्ड के पहले हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड यूज करने से क्या होगा, वो फील्ड हमें कंपल्सरी क्या करनी पड़ेगी, फिल आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट मतलब क्या होता है, जो भी हमारी फील्ड है वो हमें ऑन रखना है क्या ऑफ रखना है। ऑटो कंप्लीट ऑन है या ऑफ है वो चेक करना है कि जो भी फॉर्म में राइट कर रही हूँ उसमें मेरा जो भी फील्ड है वो ऑटो कंप्लीट में ऑन है या ऑफ है, वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इज ऑटो फोकस। नाउ व्हाट इज ऑटो फोकस? ऑटो फोकस मतलब क्या, आपके जो भी इनपुट फील्ड रहेगी उसका फोकस जब हम पेज लोड करते हैं तब हमें होना चाहिए या उसके पहले ही उसका इंटीमेशन मिलना चाहिए, वो स्पेसिफाई करने के हम ऑटो फोकस यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ मोस्टली हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, इमेज टैग के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी इमेज लेती है हम उसका हाइट एंड विड्थ क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी इमेज है उसका आपको लेंथ कितना चाहिए, उसकी ब्रेथ कितनी चाहिए, वो आप किससे डिफाइन कर सकते हो, एट्रीब्यूट हाइट एंड विड्थ। टेबल में भी आप कर सकते हो पर मोस्टली आप कहाँ पे यूज करते हैं, इमेज टैग के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल अब कब यूज किया जाता है, मोस्टली इनपुट टैग के साथ ही यूज करते हैं हम मल्टीपल। कब यूज करते हैं, जब यूजर को पर्टिकुलर फील्ड के लिए मोर देन वन वैल्यू देनी होगी। जैसे कि ईमेल है, फाइल है, मोर देन वन ईमेल एड्रेस हम दे सकते हैं, मोर देन वन फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इनपुट के साथ एट्रीब्यूट मल्टीपल। एट ए टाइम अगर मल्टीपल पर्सन को हमें डेटा सेंड करना होगा, मल्टीपल ईमेल एड्रेस हम दे सकते हैं, तो ईमेल एड्रेस के साथ हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल। ओके। और अगर फाइल अपलोड करनी, नेसेसरी नहीं है कि मैं एट अ टाइम एक ही फाइल अपलोड करूं। अगर मुझे 2 फाइल अपलोड करनी है या मोर देन 2 अपलोड करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। इसलिए मोस्टली ईमेल और फाइल ये दोनों के साथ हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट। सो दिस आर सम बेसिक एट्रीब्यूट्स विच इज यूज्ड फॉर वन इनपुट टैग। मोस्टली जब हम फॉर्म डिजाइन करते हैं ये सब टैग हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। तो हम जब एग्जाम्पल लेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे, तब आपको इन क्लियर अंडरस्टैंड होगा। सिर्फ अभी के लिए आप सब एट्रीब्यूट्स याद रखिए और उसका पर्पस याद रखिए। जब हम प्रैक्टिकल लेंगे आपको इन डिटेल समझ आएगा, ठीक है। सो इसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है
जो हम इनपुट के साथ यूज करने वाले। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट जो इनपुट टैग के साथ हम यूज करने वाले वो कौन सा है, आईडी है। अभी आईडी और क्लास ऐसे ये दो है, तो आईडी कब यूज किया जाता है और क्लास कब यूज किया जाता है। पर्टिकुलर एलिमेंट अगर हमें हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल में से फाइंड आउट करना है, डोम और बोम ऐसे दो ऑब्जेक्ट मॉडल है हमारे पास, एक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और दूसरा रहता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में से एक फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करनी होगी तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं इनपुट के साथ, आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट ये हैश कैरेक्टर के साथ हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वेयर सेकेंड एट्रीब्यूट कौन सा है, क्लास। क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू गिव सीएसएस स्टाइल टू अ डॉक्यूमेंट। जब हम सीएसएस का प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें हम क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास डिफाइन करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। डॉट इज यूज फॉर क्लास वेयर हैश इज यूज फॉर आईडी। ये दोनों एट्रीब्यूट इन डिटेल वी विल स्टडी व्हाइल वी विल बी गोइंग टू स्टडी आ सीएसएस कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो सीएसएस है उसमें इन डिटेल आपको समझेगा एट्रीब्यूट व्हाट इज आईडी एंड क्लास। अभी के लिए इतना ही याद रखो कि आईडी किसके लिए यूज किया जाता है, जब हम यूनिकली एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में से तो हम कौन सा यूज करते हैं, आईडी। वेयरएज अगर हमें हमारे क्लास को सीएसएस अप्लाई करना होगा पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो एट दैट टाइम हम कौन सा यूज करते हैं, क्लास। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस टाइप्स of attributes we will have a short example in which you will understand it in detail. So here is the example. So you can see here I have written the first line is exclamatory mark doc type HTML. This exclamatory mark is nothing but it is the comment. दिस इज नॉट डिस्प्लेड वाइल राइटिंग योर प्रोग्राम। ये आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता, ये सिर्फ यूजर को आइडेंटिफाई होता है कि मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है डॉक टाइप का। तो फर्स्ट टैग हमारा एज हमने देखा है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से फर्स्ट टैग हमारा HTML टैग है। नेक्स्ट हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग के अंदर हमारा कौन सा टैग है, टाइटल। ओके, अभी यहाँ पे मैंने टाइटल क्या दिया है, फॉर्म्स इन HTML5। ये क्या है, मेरा टाइटल है फॉर माई प्रोग्राम। तो ये क्या होगा, हेड टैग के अंडर राइट किया है, मतलब क्या होगा, मेरे ब्राउजर को इंफॉर्मेशन मिली है कि मैं कौन सा प्रोग्राम लिख रही हूँ, फॉर्म्स इन HTML। ओके, ये मेरा टाइटल कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइटल टैग क्लोज किया है। टाइटल टैग कैसे क्लोज करना है, बाय यूजिंग बैकस्लैश टाइटल। टाइटल कंप्लीट हुआ है, हेडिंग कंप्लीट हुई है तो मेरा हेड टैग भी क्या हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है बाय यूजिंग बैकस्लैश हेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है मेरा बॉडी। बॉडी में फर्स्ट अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन किया है, इसलिए मैंने कौन सा लिया है, फॉर्म टैग। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते वक्त बोला था कि बॉडी में हम डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स राइट कर सकते हैं, इमेजेस, टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे मैं फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैंने कौन सा टैग लिया है, फॉर्म टैग। अभी फॉर्म टैग लिया है मतलब क्या इंटीमेशन मिलेगा कि आई एम डिजाइनिंग अ फॉर्म। तो फर्स्ट फील्ड मेरी फॉर्म में कौन सी है, नेम। अभी नेम ये क्या रहता है, यूजर जो भी नेम रहेगा वो नेम हम राइट करेंगे। इट इज नॉट प्री डिफाइंड, एवरी यूजर उनका खुद का नेम दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट मतलब क्या, जो भी यूजर फील्ड में नेम राइट करेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। और वो ऑटो कंप्लीट दिया है। ऑटो कंप्लीट मतलब क्या, वॉट एवर फील्ड यू आर राइटिंग इट शुड बी कंप्लीटली रिटन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है BR। व्हाट इज द यूज ऑफ BR? BR इज यूज टू ब्रेक द लाइन। BR से क्या होता है, लाइन ब्रेक होती है और जो भी डेटा हम राइट करते हैं वो कहा जाता है, नेक्स्ट लाइन पे जाता है। नेक्स्ट इज ईमेल। नेम के बाद सेकेंड फील्ड जो मैंने ली है वो कौन सी है, ईमेल की फील्ड। अब यहाँ पे ईमेल के फील्ड में मैंने क्या दिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है अगर इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल राइट किया जाता है तो उससे क्या होता है, हमें एक फील्ड ऐसी मिलती है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस
राइट कर सकते हैं। और वो डेटाबेस में कौन से नेम से सेव कर रहे हैं हम, ईमेल नेम से, इसलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया मैंने ये टैग में, नेम। दिस इज माय सेकेंड एट्रीब्यूट। फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा था, टाइप, सेकेंड एट्रीब्यूट कौन सा है, नेम। ओके, उसके बाद फिर से मैंने कौन सा टैग यूज किया है, बीआर टैग। बीआर टैग किसके लिए यूज किया जाता है, जब हमें लाइन ब्रेक करनी है। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे आपके क्या होगा, डेटा राइट किया जाता है। नेक्स्ट इज डेट ऑफ इंसेप्शन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट मतलब क्या होगा, वो फील्ड को आइडेंटिफाई होगा कि आपको एक डेट राइट करनी है इन द फॉर्म YYMMDD। कौन से फॉर्म में आपका डेट राइट किया जाएगा, ईयर, मंथ एंड डेट। ओके, उसके बाद नेम इज इक्वल टू बर्थ डेट, मतलब यहाँ पे डेट ऑफ इंसेप्शन में क्या ले रहे हैं हम, बर्थ डेट ले रहे हैं, जो हम हमारे डेटाबेस में सेव करेंगे वो उसमें दिखेगा। उसके बाद फिर से बीआर यूज किया है, बीआर फॉर ब्रेकिंग द लाइन। नेक्स्ट इज ऑफिस टाइम। ऑफिस टाइम, फिर उसमें क्या दिया हमने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम से क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा कि हमें क्या राइट करना है, वहां पे फील्ड में टाइम राइट करना है। टाइम विल बी इन द पैटर्न आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। ओके, उसके बाद नेम इज इक्वल टू यूजर टाइम, दिस इज डेटाबेस वैल्यू। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, व्हाट इज डेटाबेस, हाउ इट इज यूज्ड एंड ऑल दैट। ओके, यहाँ पे फिर से क्या दिया है, बीआर। बीआर इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन। नेक्स्ट इज इयर्स ऑफ, नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड। नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड इट शुड बी फ्रॉम बिटवीन 1 to 100। इसके लिए हमें क्या दिया है, मिनिमम वैल्यू असाइन की है, मैक्सिमम वैल्यू असाइन की है। मतलब रेंज दिया है मुझे कि मुझे मिनिमम 1 वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम 100 वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं कौन से 2 एट्रीब्यूट इनपुट के साथ यूज कर सकती हूँ। एक तो फर्स्ट मुझे नंबर्स एंटर करने हैं, इसलिए फर्स्ट एट्रीब्यूट विल बी टाइप। सेकेंड, मुझे मिनिमम वैल्यू 1 लेनी है तो मीन एट्रीब्यूट। थर्ड, मुझे कि मैक्सिमम वैल्यू 100 चाहिए तो थर्ड एट्रीब्यूट विल बी मैक्स। सो देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स यूज्ड, वन इज टाइप, सेकंड इज मीन एंड थर्ड इज मैक्स। देयर आर 3 एट्रीब्यूट यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। फर्स्ट दिया है मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, यहाँ पे आगे नंबर इज वैल्यू तो उसको डबल कोट में राइट किया है। नेक्स्ट इज मीन इज इक्वल टू 1, सो मिनिमम वैल्यू विल बी 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 100। आफ्टर दैट देयर इज बीआर टैग। बीआर टैग से क्या होगा, हमारी लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट इज ऑफिस फोन नंबर। नाउ इज ऑफिस फोन नंबर, इट इज अ टेलीफोन नंबर। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल। टेल कब यूज करने वाले, जब हम टेलीफोन नंबर असाइन करने वाले या मोबाइल नंबर असाइन करने वाले, तब हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, टाइप इज इक्वल टू टेल। अभी वहां पे मैंने क्या किया है, पैटर्न यूज किया है। पैटर्न इज 0 to 9 to 0 to 9 10 मीन्स 0 to 9 में से 2 नंबर्स कंपल्सरी, उसके बाद हाइफन दिया है, उसके बाद 0 to 9 10। दिस इज फॉर वेदर इट इज नेशनल इंटरनेशनल नंबर टू आइडेंटिफाई। एंड 0 to 9 ये कैरेक्टर्स हमें 10 टाइम्स लेना है। क्यों, क्योंकि जो भी मोबाइल नंबर रहेगा तो वो कितने डिजिट का रहेगा, 10 डिजिट। ओके, नेक्स्ट इज एड योर होम पेज। अभी एरिया होम पेज में मैंने क्या किया है, जो भी मेरी वेबसाइट रहेगी वो मुझे लिंक करनी है। तो मेरी वेबसाइट मुझे लिंक करनी रहेगी तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा URL डिफाइन करना पड़ेगा। URL डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL, नेम इज इक्वल टू होम पेज। ये URL से क्या होगा, हमारी फील्ड डिफाइन होगी URL, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा URL है वो वहां पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज, src इज इक्वल टू सबमिट बटन डॉट png। यहाँ पे क्या होगा, एक बटन क्रिएट होगा सबमिट नाम का, और वो उसको हमने क्या असाइन किए, इमेज असाइन किए। इफ आई वांट टू गिव अ इमेज टू माय बटन, आई एम यूजिंग हियर इमेज टैग। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हुआ है, तो जो फॉर्म टैग यहाँ पे ओपन किया था वो फॉर्म टैग यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लोज किया है बाय यूजिंग \form। उसके बाद मेरा बॉडी टैग क्लोज हुआ है, लास्टली माय HTML टैग क्लोज हुआ है। दिस इज हाउ आई हैव रिटन अ सिंपल प्रोग्राम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्रोग्राम राइट हुआ है। प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, प्रोग्राम सेव करने के लिए। प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं हम सबको पता है, बाय गोइंग इन फाइल, सेव, एंड यू कैन असाइन योर
फाइल नेम टू योर ब्राउजर। आफ्टर गिविंग फाइल नेम, रिमेंबर आपको एक्सटेंशन क्या देना है, .html, और रन करने के बाद ब्राउजर को आपको ऐसा आउटपुट दिखेगा। ओके, अभी यह आउटपुट में अगर आप देखोगे तो हमने फर्स्ट फील्ड यहाँ पे क्या लिखा था, नेम। ओके, नेम लिखा है, वो हमारे आउटपुट में आया नेम, आगे टेक्स्ट बॉक्स आया। क्यों टेक्स्ट बॉक्स आया, क्योंकि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट मेंशन किया, हमने टेक्स्ट मेंशन किया है इसलिए यहाँ पे क्या आया है, टेक्स्ट बॉक्स आया है। सेकेंड इज ईमेल, ईमेल के लिए हमने क्या दिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर वाला ईमेल का जो भी फील्ड है वो डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट इज डेट ऑफ इंसेप्शन, यहाँ पे आप जो भी डेट राइट करोगे वो कौन से फॉर्म में रहेगी, YYMMDD फॉर्म में रहेगी। उसके बाद जो आपका ऑफिस टाइम है वो यहाँ पे राइट करोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड मस्ट बी बिटवीन 1 to 100, इफ यू गिव बिलो 1 वैल्यू नहीं लेगी, अबव 100 दिया तो भी वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मीन और मैक्स दोनों एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किए। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑफिस फोन नंबर। ऑफिस फोन नंबर यहाँ पे आपका जो भी 10 डिजिट फोन नंबर रहेगा वो आप राइट कर सकते हो। एड योर होम पेज, यहाँ पे आप आपका जो भी होम पेज का URL रहेगा वो स्पेसिफाई करोगे और सबमिट। ओके, ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे आपको इन डिटेल समझ में आएगा। यू कैन ऑल्सो ट्राई एट योर होम। So now next tag is meta tag. Now meta tag is used when you want to search a specific information from your web page. वेब पेज पे से अगर आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सर्च करनी होगी तो वो हम कौन से टैग से सर्च कर सकते हैं, मेटा टैग। मेटा टैग इज द टैग which is used for searching any information from your web page. Every time meta tag is written between your head tag. हेड टैग के अंदर आप कौन सा टैग राइट कर सकते हो, मेटा टैग। मेटा टैग इज रिटन एवरी टाइम और इनसाइड योर हेड टैग, और मेटा टैग विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन योर वेब पेज। वेब पेज पे आपका मेटा टैग कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मेटा टैग. I think you all must be understood the basic HTML programs, which are the advanced input element we are using while writing different attributes for form creation. So you all go through this video. If you have any doubt, you can ask me. We will solve that issue, and we will from next lecture we will have the next lecture on meta tag, its attribute, its example and CSS. Thank you.